ਯੈਸ ਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। तो ਆਪਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਏ ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਣ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ PDF ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ what is an emission spectra, what are its types। तो ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਗਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਛਾਪ ਦੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦਾ ਬੰਚ ਆਫ ਐਟਮਸ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਉਸ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो हर एक एटम का जो फिंगरप्रिंट मिलेगा सानू वो भी डिफरेंट होएगा। अगर साडे ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ की प्रॉपर्टीज ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਆਫਟਰ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਟਮ ਦੇ ਜੋ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, what is an emission spectra, what are its types। ਓਕੇ, तो आंसर च ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕੀ ਲਾਈਟ ਵੀ 7 ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬਟ ਇਹ ਅਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਕਟਰਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਲਾइन स्पेक्ट्रा और जो थर्ड टाइप है वो है बैंड स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। ये इत्थे तक तो तुहाडी थ्योरी हो गई तो तुसीं सारा लिखना है। तो आपां समझ भी लैंदे आ क्या है जी कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम वो हुंदा जिवें कि एक रेनबो बनदी है, जिवें कि एक प्रिज्म दे उपर लाइट फॉल करदी है तो सानू कंटीन्यू 7 रंग दिखदे आ, गैप नहीं दिखाई दे रहे तो असीं उसनू कंटीन्यूअस स्पैक्ट्रम बोल दिंदे आ, ठीक है ना। रेनबो भी इस तरह बनदी आ जो पानी ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ when a radiation emitted by excited substance by placing some volatile salt that is sodium chloride in a Bunsen flame or by passing an electric discharge through a gas at low pressure are analyzed। ओके, तो मतलब सोडियम क्लोराइड या इस तरीके नाल इनू अगर जलाने की कोशिश करिए, मतलब इनू बंसन बर्नर, मतलब कि असी एक फ्लेम दे उपर रख के सोडियम क्लोराइड नू जलाइए तो उस दे विच भी अलग तरह के कोई कलर्स निकलणगे। हर एक साल्ट ये काम करदा है, तो जो भी असी उसनू अगर जलाने की कोशिश करते हैं तो सानू अलग तरह का कलर दिंदा है, ठीक है। तो कलर देने वेले जो सानू स्क्रीन ते प्राप्त होने आ, अगर वो कंटीन्यूअस ना होण, उन्हां दे विचकार कुछ गैप्स दिखाई देन, ठीक है ना।
कुछ गैप्स दिखाए, एक ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो थोड़ी देर मतलब एक लाइन मिल रही है, उस तो बाद डिसकंटीन्यूस होगी, उस तो बाद अगली स्पैक्ट्रम मिल गया, फिर अगे। तो मतलब क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ दी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, तो अलग अलग ਸਾਨੂੰ वेवलेंथ अलग अलग एंगल ਤੇ डिस्पर्शन मिलेगा। तो इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ प्राप्त होएगा डिसकंटीन्यूस स्पैक्ट्रम। तो लाइन स्पैक्ट्रा जो है ये भी फिंगरप्रिंट ऑफ एटम का ही बोल रहे हैं। ईच एटम हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, और ईच लाइन इन स्पैक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर वेवलेंथ। हर एक लाइन जो सानू मिलती है ਉਹਦੀ वेवलेंथ, ਉਹਦੇ जो प्रॉपर्टीज है, हर कुछ अलग अलग होएगा। ठीक है ना, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਮ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਟ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੈਨ ਬੈਂਡ ਸਪੈਕਟਰਮ। तो बैंड स्पेक्ट्रम किसी मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कह रहे हो, emits a radiation over a close range of wavelength। मतलब कि अगर सानू ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ 10 15 20 ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੱਛੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ बोल देने। तो इस तरीके नाल जो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल सानू एक इस तरह का स्पैक्ट्रम देंगे, वो बैंड स्पैक्ट्रम बनाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल एमिशन स्पैक्ट्रम की डेफिनेशन भी होगी, और तीनों इसकी जो टाइप्स है वो भी तुसी इत्थे तक लिख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी तो आपने देखा एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना, एमिशन। अभी है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एमिशन तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इफ वाइट लाइट फ्रॉम वाइट हॉट ऑब्जेक्ट इज पास्ड थ्रू ए पर्टिकुलर मटेरियल, it is found that wavelength of certain energy are absorbed by this material, giving rise to a spectrum having black lines corresponding to these absorbed wavelength। किसी बॉडी ते जो लाइट पैंदी है तो वो सारी दी सारियां लाइटां नूं रिफ्लैक्ट ही नहीं करदियां, पिछे ही नहीं स्क्रीन ते सुट दिंदियां, कुछ वेवलेंथ दियां लाइटां नूं वो एब्जॉर्ब भी कर लैंदियां ने। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करन तो बाद उहदे कलर दे अंदर चेंजेस भी आ जांदियां ने। तो इस तरीके नाल एब्जॉर्ब कीती हुई जो लाइट है उस दे नाल जो मिलदा सानूं स्पैक्ट्रम है उसनूं असी एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम बोलते हैं। सच स्पैक्ट्रम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम, और एब्जॉर्प्शन स्पैक्ट्रम में बी कंटिन्यूस, लाइन और बैंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ओके, देन एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम एक्सप्लेन करने लिखो तो हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पैक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम एक्चुअली एक लाइन स्पैक्ट्रा है, और लाइन स्पैक्ट्रम के अंदर असीं पढ़ चुके हैं, सानू डिफरेंट टाइप की लाइन्स सानू हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम दियां मिलियां सी। ठीक है ना, हुण तुसी इस दे अंदर देखो तो द स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑबटेन्ड बाय पासिंग इलैक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब एक गैस ट्यूब के अंदर लै ली, उस ट्यूब के अंदर जी गैस ली वो हाइड्रोजन गैस लै ली, और हाइड्रोजन गैस के अंदर जिहड़े हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन का कोई एक एटम ते रे ऑफ लाइट नहीं पड़ेगी, और हर एक हाइड्रोजन का गैस पार्टिकल जो है ना वो अलग तरीके नाल बिहेव करेगा। तो मतलब सानू अलग अलग तरह दियां जो लाइट्स बीम लाइन्स है वो मिलणगियां। तो सब तो पहला जो हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम जो असी देखिया वो सानू देखो जी किस तरह का रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन भी दिखाई दिंदा, विजिबल रीजन च भी ये लाइनां दिखाई दिंदियां, दैन इनफ्रारेड रीजन च भी ये लाइन्स दिखाई दिंदियां। और इन्हां दी जदों खोज कीती गई ते इहदे अंदर 5 तरह दियां जो लाइन्स सानूं दिखाई दित्तियां, लाइमन सीरी, बेलमन सीरी, पास्चन सीरी, ब्रैकेट सीरी एंड पफन सीरी। मतलब कि ये लाइमन तो अल्ट्रावायलेट रीजन च सीगा, बेलमन विजिबल रीजन च सी, और ब्रैकेट जिहड़ा देखो इनफ्रारेड सीरीज च भी अगे जाके सानू अल्ट्रावायलेट विजिबल एंड बाकी दियां इनफ्रारेड रीजन च भी सानू जिहड़ियां ये हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम जिहड़ा हैगा वो मिलेगा स्क्रीन दे उपर। तो क्वेश्चन जिहड़ा है तुसी इस तरह ये लिख लेना जी। तो आगे देखो तो
ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਲਿਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ, तो सानू इस तरीके नाल स्क्रीन दे ऊपर अलग अलग कलर के जो बैंड्स मिलणगे, लाइन्स मिलणगियां, लाइन्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। It is because of different possibility of its excitation in its different energy level. The line in the visible region can be directly seen on photographic film, while the position of line in ultraviolet and infrared regions are located employing different techniques. तो इत्थे तक दा आंसर हो गया जी तुहाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब ब्रीफली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है जिसको। तो दिस थ्योरी सेज दैट रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी। जो रेडिएशन असी फॉल करनी है किसी एटम के ऊपर, उसका स्पैक्ट्रम लैन दे लई वो कह रहे कि वो एक एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी है। तो radiant energy is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of small packet called energy। तो ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ जो emitted करते हैं कुछ सबसटेंस, वो ये नहीं कि एक जिमें बल्ब की लाइट, बल्ब चल गया तो उससे सानू लगातार रोशनी मिलती रहिंदी है। तो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट है, एक डायरैक्ट कंटिन्यू लाइन नहीं है कि जो चलती रहेगी। सानू एनर्जी का एक पैकेट पहला मिलेगा, बाकी एनर्जी पिछों फिर बंद होगी, देखो ठीक है ना। वो पैकेट मिलया, फिर अगे तो फिर दूसरा पैकेट निकलिया। तो इस तरह के पैकेट फॉर्म च एनर्जी निकल निकल के साडे कोल अगे तक रिसीव होएगी। तो इस तरह के पैकेट जिहड़े एनर्जी है उन्होंने असीं फोटोन भी बोल दिंदे आ। तो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इज नोन एज क्वांटम। In case of light, the quantum is also known as photon. The magnitude of quantum is directly proportional to the frequency of radiation. E directly proportional to nu, ठीक है ना। तो E is equal to h v या h nu भी बोल देंगे इसको। तो V इथे frequency of radiation है, h Planck's constant है, इसका वैल्यू दिस वन आपने लिख लेना है दी। A body can radiate or absorb energy होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम नंबर इक्वल टू एन एच वी, और एन का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जो रहेगा डिस्क्रिप्शन, इतना करना आपने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सीगा, गिव असेंशियल फीचर्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम 1913 में नील बोहर ने दिता सी जी। तो इस बोहर मॉडल ਨੂੰ ਅਸੀਂ बड़ा अच्छे तरीके ਨਾਲ एक्सेप्ट ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। तो इसका पहला असेंशियल अच्छा फीचर सीगा, एन एटम कंटेन हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो इसने कहा था भी सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द रेवोल्यूशन करेंगे अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर। इसने ऑर्बिट बोल दी उसको, उसके इलेक्ट्रॉन के रास्ते को ऑर्बिट, ठीक है ना। तो इसने एक और बात बोली कि सर्कुलर ऐसे रोटेट कर रहे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी जो है वो कभी भी कम नहीं हो पा रही, ठीक है ना। वो एनर्जी ले करके जंप करके लोअर से हायर लेवल में चले जाएंगे, और एनर्जी लॉस करने के बाद वो फिर से अपने वापस शेल में भी आ जाएंगे। दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस without emitting a radiation. So far as an electron revolve in a certain orbit, its energy remain constant. इसका अच्छा पॉइंट था बोहर मॉडल का। तीसरा पॉइंट में है, these different energy level are designated by number 1 2 3 4, और इनको हम KLMN से भी जानते हैं, ठीक है जी। तो electron in an atom can revolve only in those orbit in which angular momentum MBR of electron is a whole number n multiple of constant h by 2 pi। ओके, तो मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो जान तो होएगा एम वी आर। एम का मास है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, और प्लैंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग h by 2 pi। तो इट मीन्स टू से दैट एम वी आर इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई h by 2 पाई। अगर 2 पाई दिस साइड चला जाए तो भाई आएगा एम वी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू एन एच। ओके, देन ऐसे दिस
postulate indicate that the angular momentum of an electron moving in circular orbit is quantized। एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जिस लेवल में है पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 होएगा, दूसरे के अंदर 2 इंटू h/2, तीसरे शेल का 3 इंटू h/2, ऐसे सो ऑन। When an electron jump from stationary state to another, तो एनर्जी बिटवीन टू स्टेट्स का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे डेल्टा ई, एक लेवल से दूसरे लेवल तक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो दोनों लेवल की एनर्जी का माइनस करके वो इक्वल टू एच न्यू ही आएगा। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी इज emitted, एनर्जी इज absorbed by an electron when it jump from lower energy state to higher energy state. It is obvious that the electron cannot radiate energy if no energy level is available. That is why atom do not collapse. तो ऐसे कभी नहीं है कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करते हुए एनर्जी लॉस करेंगे और कोलैप्स करके इलेक्ट्रॉन एक दिन सेंटर के पॉजिटिव चार्ज के अंदर गिर जाएंगे तो सारे का सारा एटम कोलैप्स कर देगा। तो इसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, एटम कभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। तो जी यहां तक आपने इसको लिखना है। इसके बाद इसकी एनर्जी को भी इसने कैलकुलेट कर दिया। ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद -13.595 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन स्क्वायर, मतलब कि किसी भी शेल का आप इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले घर की कैलकुलेट करने है तो n का वैल्यू 1 लिखो, दूसरे घर के लिए आप एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो n का वैल्यू 2 लिखो, और -13.595 डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू पुट करके आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैलकुलेट कर लो। और दो लेवल की एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद उनका डिफरेंस करके आप चेंज इन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारा वर्क जो है सारा बोहर का अच्छा वर्क था। तो ये सारा आपने एनर्जी कैलकुलेशन तक करना है जी। ठीक है जी। तो यहां तक आपने इसको लिख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल दो दिए थे। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव। तो मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोहर के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ, पांचवें शेल का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो पांचवें शेल का रेडियस का फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻², n⁻²। ओके, n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो Rn मतलब कौन से शेल का रेडियस कैलकुलेट करना है, फिफ्थ लेवल का, तो ये वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 का स्केयर आ जाएगा। तो जस्ट 5 का स्केयर कैलकुलेट करें, बाकी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेशन कर सकते हो 13.225 एंगस्ट्रॉम, जो कि पांचवें शेल तक जो इसका रेडियस होगा। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हो। ठीक है जी। तो रेडियस निकालना है तो ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जस्ट वैल्यू पुट करना है, और एनर्जी निकालना है तो ऐसे। तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला अभी हमने स्टडी करा था, उसमें भी जस्ट -13.595 डिवाइडेड बाय एन स्केयर ही करना है। एन का वैल्यू जस्ट पुट करना है, किस शेल की आप एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हो, जस्ट एन का वैल्यू पुट करो। और हीलियम 1 पॉजिटिव है, हीलियम का 1 इलेक्ट्रॉन, नो सॉरी, पहला शेल है, एन का वैल्यू 1 है, तो फिल करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसका रेडियस देखना है तो रेडियस के लिए भी कैलकुलेशन होगी। ओके, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, जेड का वैल्यू 2 करके आ जाएगा, इसका रेडियस भी कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है जी। ये दोनों न्यूमेरिकल करने हैं आपके। इसके बाद हाउ डज बोहर मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बोहर ने एक एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया।
According to Bohr's model of an atom, electron in an atom can revolve in certain definite energy level called stationary state. As long as electron remain in particular permitted circular orbit, it neither emit or absorb energy. In other words, an electron cannot spiral toward nucleus. तो कहने का मतलब है कि बोहर ने ही कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल के अंदर सर्कुलर रेवोल्यूशन कर रहा है तो वो कभी भी एनर्जी अमिट नहीं कर रहा, ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना अमिट कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी एनर्जी नहीं छोड़ेगा तो वो अपने ही शेल के अंदर रेवोल्यूशन करता रहेगा। तो इसलिए अगर वो ना तो एनर्जी अमिट कर रहा है ना एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अपने शेल को कभी भी छोटा नहीं करेगा। तो शेल को छोटा करते करते वो कोलैप्स नहीं करेगा एटम सारा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे उसने बोहर ने एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया कि एटम कभी भी कोलैप्स नहीं कर सकते, जैसे कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में गिर जाएंगे और सारे का सारा एटम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये वाला आंसर आपने लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आपको यही करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ emission लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। तो मतलब तो हाइड्रोजन एटम का n6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6। तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका n का वैल्यू अगर 6 है तो 6 में से वो पहले ग्राउंड स्टेट 6 में से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन ने आना है तो वो कितनी emission लाइन बनाएगा, कितनी लाइन बनाएगा। वैसे तो इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। n का वैल्यू 6 है तो दोनों वैल्यू 6 लिख लो और इसको कैलकुलेट करो तो 15 आंसर आ जाएगा। इट मींस 15 वो emission लाइंस बनाएगा, ठीक है ना। ऐसे न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। अगर कैलकुलेशन आपने मैनुअली करना है तो मैनुअली ऐसे है कि सिक्स्थ शेल में लास्ट सेल है उसका सिक्स्थ में से जंप करके फिफ्थ तक आ सकता है, 6 में से जंप करके 4 3 2 1। तो 6 में से पॉसिबिलिटी उसकी है 5 लाइन बनाने की। अभी वो 5वें शेल में आ गया तो उसमें से पॉसिबिलिटी है 5 से 4 में जाएगा, 3 में जाएगा, 2 1 और 4 लाइन बना देगा। 4 में जाकर वो 3 लाइन फिर से बनाएगा, फिर 3 में जाकर 2 लाइन और दूसरे में से ग्राउंड स्टेट तक आते हुए उसको 1 लाइन बनाएगा। तो मतलब टोटल लाइन गिनने के बाद हमें मिलेगा कि 15 लाइंस बनाएगा। जैसे कि ये है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो ये देखो, तो ये ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट में तो मतलब क्या है कि अगर 6th लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो 6th लेवल में से उसकी पॉसिबिलिटी है जहां तो 6 में से 5th तक आए, जहां 6th में से 4 तक जाए, जहां 6th में से 3rd तक जाए, जहां 6th में से 2nd तक जाए और जहां 6th में से वो 1st तक जाए। तो मतलब 6th में से ही उसकी पॉसिबिलिटी 5 लाइन की बन गई। ऐसे ही 5वें शेल में से उसकी पॉसिबिलिटी अलग अलग पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद 15 लाइन हमारे पास मिल जाएंगी। और ये क्वेश्चन भी आपको समझना जरूरी था और इसलिए मैंने ये वाला एक क्वेश्चन भी रख दिया। तो इतना आप होमवर्क पहले कर लो, ठीक है। इसको साथ साथ में समझना भी जरूरी है इसलिए आपको डिक्टेट कर रहा हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में असी अगले क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बाकी का काम करेंगे। ओके जी डियर्स।